Welcome. After the five kingdom classification, which is proposed by R.H. Whitaker 1969, these are the five kingdoms: kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, which are basis. Our basic criteria of these kingdoms are cell organization, body organization, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship. इस पांच मुद्दे के ऊपर ये पांच किंगडम्स है. पांच किंगडम्स जो है, all living organisms are differentiated into five groups. These five groups are based on these categories. So next topic here we will start the one by one kingdom Monera. We will see all the five kingdoms, their characteristics. उनके characters क्या है किंगडम मोनेरा. अभी जो पांच कैटेगरी है, ये पांच कैटेगरी बेसिक क्राइटेरिया जो है, ये बेसिक क्राइटेरिया अगर समझ में आया होगा तो अपन इसके कैरेक्टर्स खुद लिख सकते. किंगडम मोनेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोकैरियोटिक. किंगडम मोनेरा, फर्स्ट किंगडम मोनेरा, they are prokaryotic. अब यहाँ पे समझ लीजिए. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड हियर. all these types of animals or plants or whether any living organisms are included under this kingdom monera. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस जो सेल में रहता, वो न्यूक्लियस अगर डेवलप नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उसको इस कैटेगरी में डालते हैं. कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डालेंगे अपन? जिनके भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनको इस ग्रुप में डालेंगे. फर्स्ट दे आर प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक समझ में आया? here only DNA is present. Only DNA is present. DNA here means there is no nuclear membrane, no nucleoplasm, no histone protein. Remember in between prokaryotic and eukaryotic the difference. Only DNA. No nuclear membrane, no nucleoplasm, no nucleolus, no histone protein. Only DNA is present in these living organisms. Nucleoid, simply it is called nucleoid, not nucleus. This is called nucleoid. Remember, not nucleus. जैसे अपन न्यूक्लियस बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोलेंगे अपन. यहाँ पे जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, देयर आर नो एनी हिस्टोन प्रोटीन्स, ओनली डीएनए आर प्रेजेंट. दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. देन सेल वॉल इज रिजिड. इनकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल लिख सकते हैं अपन रिजिड, जिसको अपन कठिन बोलते हैं, रिजिड. And it is made up of peptidoglycan. Cell wall is made up of peptidoglycan. The substance, जैसे अपन प्लांट की सेल वॉल बोलते हैं, किससे बने वाली है? एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती, प्लांट्स में रहती, इनमें है. वो कैसी है? रिजिड है, और इट इज मेड अप ऑफ peptidoglycan substance. Peptidoglycan is substance. This cell wall is made up of this substance, that is peptidoglycan. And these organisms are unicellular, as in eubacteria or filamentous or in cyanobacteria. These are unicellular organisms. अपन इनके कैरेक्टर्स देख रहे हैं किंगडम मोनेरा के, जिसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डालने वाले हैं इस ग्रुप में. All the living organisms included in kingdom monera are prokaryotic, means nucleus is not developed. Nucleus is without nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm, कुछ भी नहीं है.
only there is DNA and it is also without a histone protein, hence the nucleus is known as nucleoid. Cell wall is rigid, it is made up of peptidoglycan, they are unicellular as in eubacteria. Example, eubacteria. और filamentous, उनका स्ट्रक्चर जो है eubacteria, filamentous स्ट्रक्चर जो है filamentous. फॉर एग्जाम्पल cyanobacteria. Cyanobacteria is also called blue green algae. Remember, अभी तुम बोलेंगे सर, तुम डाउट आना चाहिए कि ये साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae जो है वो किंगडम प्लांटी में चाहिए, क्योंकि algae है, वो algae है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? These cyanobacteria, this type of algae having nucleus where nucleus is not well developed. These cyanobacteria or blue green algae having nucleus, it is without nucleoplasm, without nuclear membrane, without histone protein. So this cyanobacteria group are included under the kingdom Monera. समझ में लो, Monera, kingdom Monera. With first point indicates prokaryotic nucleus is not well developed. Then these organisms are either or they are without cell membranes. Cell membranes, और वहां पे जो ऑर्गन्स है ये नहीं रहते, विदाउट सेल ऑर्गन्स. जैसे फॉर एग्जांपल सेल में ऑर्गन्स होने चाहिए क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो ऑर्गन्स रहते काम करने वाले यानी अलग अलग ऑर्गन्स, ये इनमें रहते, इनमें नहीं रहते. किंगडम मोनेरा के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें नहीं रहते. सो दे आर कॉल्ड विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. इनमें जो सेल में जो ऑर्गन्स है वो कैसे है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक और इन किंगडम मोनेरा. देन these organisms either motile और नॉन मोटाइल. इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मोटाइल है और कुछ ऐसे हैं जो नॉन मोटाइल है. अभी क्या है मोटाइल और नॉन मोटाइल? मोटाइल मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते उनको बोलते हैं मोटाइल. इनमें भी ग्रुप्स है, बाद में और ग्रुप्स है. इसमें किंगडम मोनेरा में कुछ मोटाइल है कुछ नॉन मोटाइल है. मोटाइल मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते उनको बोलते मोटाइल. जो नहीं जा सकते उनको बोलते नॉन मोटाइल. अभी इसका सवाल ही नहीं है. दे आर नॉन मोटाइल, दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. और मोटाइल जो है इसमें और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन सिलिया है, किसमें फ्लैजेला है, किसी में शूडोपोडियम है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा मीन्स अमीबा जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है. बेस्ट एग्जाम्पल है किंगडम मोनेरा अमीबा. तो अमीबा जो है उसकी लोकोमोशन वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता विद द हेल्प ऑफ शूडो मीन्स फॉल्स, पोडियम मीन्स लेग्स, फॉल्स लेग्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो जिनमें सिलिया है लोकोमोटरी ऑर्गन और कुछ जो है उनमें फ्लैजेला रहता. तो इसकी ये जो है दीज आर दी लोकोमोटरी ऑर्गन्स. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है न्यूट्रिशन कैसे करते, खाना कैसे खाते? मोड ऑफ न्यूट्रिशन.
मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कुछ देखो, अभी ये मैंने जो तुमने जो बेसिक क्राइटेरिया लिया था वो हर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। सेल यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सब आ रहा है यहाँ पे। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कुछ इसमें एटोट्रॉपिक है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक है और कुछ यहाँ पे जो है पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक भी है। अब यहाँ पे सैप्रोफाइटिक आपने टर्म्स एक्सप्लेन की वाली है। पैरासाइटिक जो दूसरे पे डिपेंड है, हेटेरो जो दूसरे पे डिपेंड है, एटोट्रॉपिक जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, ये भी है इसमें। सैप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिजम्स पे जो अपनी लाइफ बिताते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडी पे। तो यहाँ इसमें और एक एग्जांपल बोलता हूं मैं, इसमें एक ग्रुप फंजाई का भी है। दिस किंगडम हैविंग group of fungi also, that actually kingdom fungi is different। तो उसको kingdom fungi में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इसमें जो फंजाई है वो प्रोकैरियोटिक है। जैसे अलगी है, यहाँ पे एक ग्रुप अलगी का भी है, एक ग्रुप फंजाई का भी है। जिन बेसिक जो क्राइटेरिया है वो उसको छोड़ने का नहीं, क्लासिफिकेशन करते वक्त जो बेसिक क्राइटेरिया है वो भूलना नहीं। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे सम आर एटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। द एटोट्रॉपिक्स आर, इसमें और दो डिफरेंट ग्रुप्स है। एटोट्रॉपिक्स उसमें दो ग्रुप है, फोटो और फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटो मींस जो लाइट एनर्जी, सनलाइट जो है, सनलाइट एनर्जी का यूज करके फूड बनाते उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड बनाने वाले केमोसिंथेटिक। केमिकल एनर्जी दे आर कॉल्ड केमोसिंथेटिक। तो इस किंगडम मोनेरा में ये भी है, ये भी है। ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन आपने जो की है उसमें फिर और क्लासिफिकेशन है। किंगडम मोनेरा इज अगेन डिवाइडेड हैविंग 4 ग्रुप्स। उस ग्रुप्स में और क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। अपन यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया दिख रहे हैं, अच्छा इनके कैरेक्टर्स दिख रहे हैं किंगडम मोनेरा के। तो इनमें एटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, पैरासाइटिक भी है, सैप्रोफाइटिक भी है। एटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक कुछ है, केमोसिंथेटिक कुछ है। सो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ यार एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो अलगी का ग्रुप है वो इसमें आता। ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं अपन, एग्जांपल फोटोसिंथेटिक का जो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड बनाते। केमोसिंथेटिक, हियर द बेस्ट एग्जांपल इज थायोबैसिलस। बैसिलस मींस बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक का बेस्ट एग्जांपल इज थायोबैसिलस, हियर एग्जांपल। So this is about mode of nutrition and the last here the mode of reproduction. Mode of reproduction, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी संख्या कैसे बढ़ती है, 1 से 2 कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन, प्रजनन जिसको बोलते हैं अपन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट हियर इन दिस ग्रुप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी वगैरह कुछ नहीं है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स कुछ भी नहीं है। सो हियर द ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, दैट मे बी फिशन और बडिंग। Asexual reproduction found here. Means absent, sexes are absent. Asexual reproduction, whether by budding or by fission. Asexual reproduction, it may be with the help of budding or fission. बॉडी का एक आधा पार्ट गिरना और अलग होना, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड होना, उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं अमीबा जो है, अमीबा का डायग्राम बताता हूँ यहाँ पे। दिस इज अमीबा, कौन सा भी शेप निकालो, यूनिसेलुलर एनिमल है। अभी इसके इस अमीबा के ये दिस इज यूनिसेलुलर। अगर इसमें इनकी सेल में माइटोसिस हो गया, एक सेल के 2 सेल मिल गए, तो
दो आम्ही बात तयार होंगे. सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो ऑर्गेनिजम्स इसमें इससे मिलते, पेरेंट बॉडी, these are daughter body. So in this way the kingdom Monera having the criteria or sorry characters. Then in next period we will see the classification of और grouping of kingdom Monera. Monera में और 4 ग्रुप्स है जिसमें आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज. अभी तीसरा जो ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया, ये जो है अल्गी का ग्रुप है. एक्टिनोमाइसिटीज it is a group of fungi. Archaebacteria which are called oldest bacteria, and eubacteria that is true bacteria which are found everywhere throughout the universe. उनको बोलते हैं eubacteria, EU, true bacteria. So these are the 4 groups of kingdom Monera. We will see later on in next period. Kingdom Monera having 4 groups or examples of that 4 groups: Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria and Actinomycetes. So, and also we will see the next kingdom Protista in later on or in next period. So here we will finish the characteristics of kingdom Monera. जो first group है अपना kingdom Monera, उसके characters, first main character is they are prokaryotic. यूनिसेलुलर तो है, प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड. देन हाउ और सॉरी व्हाट अबाउट सेल वॉल, व्हाट अबाउट न्यूक्लियस, व्हाट अबाउट देयर मूवमेंट्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, whether they are motile or non motile, whether they are autotrophic, heterotrophic, parasitic, saprophytic, then mode of nutrition, sorry, mode of reproduction. In this way these are the characteristics of kingdom Monera, and the classification of this kingdom Monera we will see later on. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि काही प्रॉब्लेम्स असतील, डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. थँक्यू व्हेरी मच.